हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY's app are continued and the final day of coverage of the ICC Men's World Cup 2023. It is the big day. It is the day we'll find out who is going to be crowned as the champions of ODI cricket. It has been a fantastic journey, and before we get cracking today, let me bring in the four very special guests that I have in this show with me. Four outstanding minds that have been in this journey throughout the World Cup. With me in the Pavilion, first up, and former captain of Pakistan, great runner between the wickets, a great player of spin bowling, and captain Pakistan really well, Shoaib Malik. Good morning, assalamu alaikum, Shoaib. Good morning, walaikum salam. Good morning and assalamu alaikum everyone. The most successful test captain in Pakistan's test cricket history. I've got Misbah. Good morning, assalamu alaikum, Misbah. Good morning, walaikum assalam, and assalamu alaikum to everyone. Chandi ki lomdi, the silver fox, the man of crisis, excellent runner between the wickets, one of the finest wicket keepers of the game of cricket. Moin Khan, good morning, assalamu alaikum, Moin. Good morning, walaikum assalam, assalamu alaikum everyone. And this man needs no introduction, ladies and gentlemen. He is a force to be reckoned with. And जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, but असल introduction post match में दूँगा. I've got the Sultan of Swing, the king of all all-rounders, Wasim Akram. Good morning, assalamu alaikum, Wasim. Good morning, assalamu alaikum everyone. Guys, bonjour. Bonjour. Right, जनाब, बड़ा दिन, आखिरी दिन, बड़ा मुकाबला. It's India versus Australia. मैच आइडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. हम आपको लेकर जाएंगे 1:30 बजे बराह रास्त. इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में at the Modi Stadium. The two best teams of this World Cup are now face to face for the final time. And at the end of the day, one will be crowned champion. It is an outstanding day. There is a lot of history here as well between these two teams, and there's a lot to talk about. Let's get cracking, Wasim. India has been undefeated in this World Cup. They have played extremely methodical, clinical cricket. हर एक के रोल्स डिफाइंड हैं, सबको पता है कि उनकी टीम में क्या जगह है, उन्होंने क्या करना है, कोई गैप्स नहीं है टीम के अंदर, हर कॉर्नर को कवर किया हुआ है और अनडिफीटेड रहे हैं. एंड दे कम इनटू द फाइनल अनडिफीटेड. बिल्कुल. और इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो 4 मैच हैं, टोटल जो लास्ट 4 टोटल हैं वो है 397 न्यूजीलैंड, 410 नीदरलैंड, 326 साउथ अफ्रीका and 357 Sri Lanka. That shows how good India have been in this World Cup. Consistency. This is the 10th game they won in a row. I doubt कि किसी टीम ने ऐसे किया होगा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में. 10 के 10 मैच और सिर्फ एक मैच उसमें से क्लोज हुआ था, दैट फॉर हाफ एन आवर व्हेन इंडिया वाज चेजिंग ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई, व्हेन ऊपर से 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई थी. वो थोड़ा सा हिकअप आया था, बट उसके बाद it was just a one-way track. The way they played, every batting ले लो, bowling ले लो, fielding ले लो, कप्तानी ले लो, everything worked for them. And it's not कि ये fluke है. Fluke होता है एक आधे मैच का, एक आधी इनिंग का. T20 में 10 मैच consecutive जीना, that shows the consistency, the quality and the planning behind this. ये हफ्ता पहले प्लान नहीं हुआ होगा, ये साल 1.5 से लगे होंगे प्लेस कौन से ट्राई करने हैं, पूल में कौन से प्लेस रखने हैं. So well done. Congratulations to everyone involved with Indian cricket. रोहित शर्मा और शुभमन गिल बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है. ऊपर से ही आते साथ ही किसी भी बॉलिंग अटैक को इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर कर देते हैं कि then it becomes very difficult for bowlers to find the right line or the length or setting up the right field. And how important is that? क्योंकि वो फिर पूरी की पूरी बाकी बैटिंग लाइनअप के लिए दरवाजे खोल देती है. देखें, क्रिकेट में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ मोमेंटम. स्टार्ट आपका अगर आप स्टार्ट में ऐसा मोमेंटम बना देते हैं कि जिसमें दूसरी टीम बिल्कुल बैकफुट पे चले जाती है और उनके मेन स्ट्राइकर बॉलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम, और अगर आप पूरी ओवरऑल इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो टॉप जो उनके 5 हैं बैट्समैन, सबके स्कोर देखें, मिनिमम स्कोर जो है 7वें नंबर पे जडेजा आ रहे हैं और उनकी भी 55 की एवरेज है. यानी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली इतनी. वरना शुभमन गिल 350 रन, 386 केएल राहुल, विराट कोहली 711 के साथ टॉप पे है, रोहित शर्मा 550 रन, अय्यर 526 रन. इट मीन्स कि बैटिंग में हर बंदा स्कोर कर रहा है. कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो अभी तक जिसने परफॉर्मेंस, हाँ 6ठे नंबर पे आप कह सकते हैं कि एक उनका जो उसको उस तरीके से चांसेस नहीं मिले, इस वजह से उसके रन्स नहीं हैं. बट ओवरऑल बैटिंग लाइनअप
एक तो मैच विनर है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, दूसरा वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द की फॉर देम एट द मोमेंट और दे आर सो सक्सेसफुल. इट इज मोइन, मिसबा ने कहा कि बैटिंग में हर कोई जो है उनकी तरफ से रन्स कर रहे हैं. इवन के जाडेजा को उनको मौका नहीं मिला मगर उनके भी रन्स लगे हुए हैं. बट चले ये तो बैटिंग की बात होगी, तो बॉलिंग में भी हर कोई विकेट ही ले रहा है उनकी तरफ से. इंडिया की तरफ से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा. जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इंडिया को वो नए बॉल से हुआ. नए बॉल से बुमराह ने जिस तरह स्टार्ट लिया था इस टूर्नामेंट में आके, एंड देन उनके साथ शामी ने बॉलिंग की है, टॉप इस वक्त विकेट टेकर है. आई थिंक वो जिस तरह वसीम मैंने भी बात की थी शामी के बारे में, एक तो सीम ला के मार रहे हैं उसके बाद गेंद जिस तरह डिविएट होता है, बहुत मुश्किल हुई है तमाम बैट्समैनों को उसको खेलने में. और मोस्टली जो विकेट्स लिए विकेटों के पीछे उन्होंने LBWs किए, बोल्ड किए या कॉट बैंड्स हुए. इट शोज कि कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने. आई थिंक नए बॉल से तो मिला उसके साथ साथ. बिफोर वी गो टू शोएब, अब जैसे मोइन बॉलिंग की बात कर रहा है, 95 विकेट्स अभी इंडियन के बॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप में, highest by any team. then averaging just over 20 per wicket, The best by any team. Economy rate the best by any team, 23 maiden overs the most by any team, और 4 दफा 5 विकेट लिए हैं बॉलर्स ने, most by any team. So fantastic bowling effort by India. Sorry, Moin, you were continuing or you're done? Okay, so you've got the data from there. Shoaib, let me bring this to you now. Historically, अगर देखा जाए हेड टू हेड 13 दफ़ा ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं ODI क्रिकेट के अंदर, और जिसमें डोमिनेशन जो है वो इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की रही है अगेंस्ट इंडिया. ऑस्ट्रेलिया वन आउट ऑफ द 13 मैचेस 8 times and India 5 times. But recently things have been different, including in this World Cup. India defeated Australia. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इस वक्त. India have beaten them here. Also bilateral series हुई थी 2 महीने पहले. India won that series 2-1 as well. A lot of history that comes into play on this final. ऑफ कोर्स. और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसी टीम है कि दे परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर अंडर प्रेशर, और वो प्रेशर के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं. हम लोगों ने इस वर्ल्ड कप में देखा दे लॉस्ट देयर फर्स्ट 2 मैचेस, बट हाउ दे केम बैक इन द टूर्नामेंट, वो भी अनबीटन है. उसके बाद से इंडिया तो ठीक है सारे मैचेस जीता है, बट वो भी कोई उनसे थोड़ा सा ही पीछे है, सिर्फ 2 मैचेस की बात है. देखें आज जो फाइनल होने जा रहा है वो होने जा रहा है ऐसे वेन्यू पे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेशो नहीं है. ठीक है 3 दफ़ा जो टीम है सेकंड बैटिंग में जीती है आउट ऑफ 4 गेम्स, लेकिन ऐसा वेन्यू है कि जो दोनों टीम्स को इक्वल चांस दे सकता है, चाहे आप टॉस हार जाएं चाहे टॉस जीत जाएं. तो ये है कि सिर्फ इनमें जो थोड़ा सा मसला आ रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम में वो ये है कि जो उनके कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले बैटर्स हैं ना, दे हैवंट बीन स्कोरिंग रन्स. वो उनके लिए एक जो है मेजर इशू है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि वो इंडियन टीम से थोड़ा सा पीछे हैं गोइंग इनटू द फाइनल्स. तो ये अगर समहाउ दे कम डाउन और दे समहाउ दे फिगर दैट आउट कि ये कैसे चल सकता है, तो फिर वो टफ टाइम दे सकते हैं. अदरवाइज आई डोंट सी इवन क्लोज गेम हैपनिंग टुडे. वसीम, इंटरेस्टिंगली अभी आप बॉलिंग का रिकॉर्ड जो शेयर कर रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले मिसबा में बैटिंग का बता रहे थे दैट दे हैव ऑल बीन स्कोरिंग रन्स. Also, 6 consecutive games, India has not made a single change. After the Hardik Pandya exit from this World Cup, उनकी इंजरी की वजह से शामी आए, उसके बाद they have not changed. And if they go into this game today without a change, then they set up a new record. That's the first time in a World Cup that a team has gone without a change for 7 consecutive games. But that speaks volumes, and actually the point that you've been making, that this is not just planning of the last 2 months or 3 months. This has been planned for quite some time. And that is why you show कोई ज़रूरत ही नहीं change करने की. We're okay. We know what we're doing. You see, I don't want to criticize our part of the world, our people. But देखें ना, planning की बात करते हैं हम. आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, the biggest event in cricketing world, I think, worldwide. And this was announced when कि 19th नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल होगा, लॉन्ग टाइम अगो. और आज पाकिस्तान कप का भी फाइनल है, डोमेस्टिक क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारा. तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना, हमसे ये प्लान नहीं हो पा रहा कि ਅਸੀਂ फाइनल उस दिन ही रखना जिस दिन वर्ल्ड कप दा फाइनल है. तो मेरा मतलब है कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना. बट कमिंग बैक टू इंडिया, सारा काम, सारी एक्सपीरियंसेस और जो वो इन्होंने करने थे एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे कर चुके हैं, फिर ये एशिया कप में आए हैं.
अब जो बाहर लड़के बैठे हैं इनके 3 अश्विन है, ईशान किशन है, शर्दुल है और वो ऑलराउंडर एक आया पांड्या की जगह, अगर उनको जगह मिलती है वो स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में फिट होंगे। बिल्कुल होंगे, दे नो एग्जैक्टली आते साथ ही कि उनका रोल क्या होगा, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। जो उनकी प्लेइंग 11 थी उसमें से उनका मेन जो प्लेयर था वो इंजर्ड हुआ, लेकिन जो आया उनकी टीम और स्ट्रांग हुई, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। गुड पॉइंट दैट वसीम ब्रिंग्स। आज बिल्कुल पाकिस्तान कप का भी फाइनल है, विच इज़ अ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास गेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी वांट्स टू सी इट. We wanted to see it as well, but because we have the World Cup final, all the eyeballs are going to be towards the World Cup finals, which means that many of us, not just the ones here in the pavilion, but many cricketing fans in Pakistan who want to know what is coming up next in their international cricket. And all the channels, the cricketing pundits, everybody wants to see that. वो तो वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे होंगे ना, उन्होंने उस पे बात करनी होगी। और बजाय कि हम अपनी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखेंगे यार ये फ्यूचर के कौन से लड़के हैं, we're going to be miss out. So that's just a result of a poor planning. We're going to take a break here on the pavilion. When we come back, we're getting closer to the action. It is the big day at the ICC World Cup. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app, and it's the final day at the ICC World Cup. Today we are going to be taking you to Ahmedabad, where both the two teams, Australia and India, are preparing to face off for the final time. At the end of the day, one will be crowned champion. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग इंडिया की टीम के हवाले से बात कर रहे थे. Their total dominance and invincibility, and how they have covered every corner of the game, every part, every angle. But now let's talk about Australia. Misbah, let me start off with you. Where do you see the gap? Because Australia यूँ लगी सेमीफाइनल के अंदर के स्पिन के खिलाफ वो थोड़ा सा स्ट्रगल किए थे उस एक पीरियड के अंदर बीच में. It wasn't a very simple chase for them. I mean, it looked very comparatively very easy for India. Why? Because they were just supreme in every way. But Australia के लिए थोड़े से वो कहते हैं ना, it has been a topsy-turvy curve to come into the final. And the last game showed there is a little bit of that gap in there. And Labuschagne, is he really in the right form right now to be playing this final? I think मलिक ने बार बार ये चीज़ पहले भी कही है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ heavily depending on the top 3. वही मोमेंटम दे रहे हैं, वही लंबे रन्स कर रहे हैं. स्मिथ एंड लबुशैंग जो है वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. नॉर्मली ये दोनों इंडिया में आके अच्छा परफॉर्म करते हैं. मिडल ओवर्स में आके ना सिर्फ लंबी इनिंग खेलते हैं, बल्कि इनको रखा ही इसलिए कि स्पिन को लबुशैंग स्पेशली रिवर्स स्वीप मारते हैं और स्लॉग स्वीप अच्छी खेलते हैं, फिर रोटेशन स्ट्राइक रोटेशन करते हैं. दे बीन अनएबल टू डू दैट इन दिस वर्ल्ड कप फॉर समहाउ. उस वजह से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पे प्रेशर है. उस तरीके से अगर उनको स्टार्ट नहीं मिलता तो मिडिल ओवर्स में ना ही उनको लंबे रन्स मिल रहे हैं, ना ही वो जो सॉलिड एक पार्टनरशिप चाहिए ना वो मिल रही है, और लंबा स्कोर भी नहीं मिल रहा. तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी डिपेंडिंग हैविली ऑन द टॉप 3. मिडल में आके बार बार ये बात हो रही है कि स्मिथ या लबुशैंग को आके इनिंग खेलनी पड़ेगी. अगर फाइनल में कहीं पे भी उन पे ये गेम आती, अभी तक for somehow they are unable to do that, which is basically putting a lot of pressure on the top 3. तो मेरे ख्याल में इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए फिर क्वालिटी बॉलर्स हैं. लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा जैसे स्पिनर है यहाँ पे, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं. और इवन जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं मैक्सवेल, उनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना ग्रेट स्पिनर या ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट है. तो आई थिंक ये बैटल विद इन द बैटल तो ये होगी, और ये ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो आज के मैच में बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल के 20 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे. कुलदीप यादव आएंगे, उन्होंने पिछले मैच भी इनको ठीक ठाक मुश्किल में डाला है. फिर जडेजा एज अ टॉप क्लास स्पिनर, अगर हल्का सा भी आपको पिच पे स्लो पिच पे थोड़ा सा भी टर्न मिल रहा है तो जो नेचुरल वेरिएशन है उनकी, आके वो मारते हैं 96 पे वहीं से और क्लोज स्टंप करते हैं. कोई चांस ही नहीं होता. आपका बॉल सीधा रहता है, पैड पे लगा तो आप लेग भी फोर हुए. हल्का सा स्पिन होता है, लंबा टर्न नहीं होता, बहुत चांसेस होते हैं कि वो स्टंप उड़ा देते हैं आपकी. आपने स्टंप्स कवर भी किए हुए हैं. तो छोटे ब्रेक में ये होता है कि वो जस्ट बीस योर बैट और आप बोल्ड हो जाते हैं. Right. तो ये एक चैलेंज होगा. एक चीज़ है दोनों की, स्टीव स्मिथ की और मानस लबुशैंग जो हैं, वो दोनों जो हैं वो ऐसे बैटर्स नहीं है कि अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलर्स के वो 15 का ओवर लगा दें, 20 का ओवर लगा दें. Right. तो जब आप लबुशैंग की बात कर रहे जी हैं और और स्टीव स्मिथ स्मिथ की भी मैं बात करूँ,
they are quality players, but they have been struggling throughout the World Cup. जो hit भी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा. तो जब क्वालिटी स्पिनर्स आते हैं तो वो 15-20 का ओवर नहीं लगा सकते. जो उनको ना वो जो एक होता है ना एक मतलब जैसे इंडियन टीम है जी, वो पेस बॉलर्स को खेल रहे हो, स्पिनर्स को खेल रहे हो, तो वो सारे ऊपर से 1 से लेके 6 तक जो 7 तक हैं वो कोई भी जो है वो 15-20 का ओवर लगा देता है क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट भी. लेकिन इनमें ये नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए इनको जो है एक बंदे को खिलाना चाहिए. क्योंकि मानस को हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के अगेंस्ट शम्सी उन्होंने स्ट्रगल किया, और कुलदीप हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म और वो विकेट्स भी ले रहे हैं, और उनको बाहर जाने वाला बॉल अंदर आने वाला नहीं समझ आ रहा, हाथ से पिक नहीं हो रहा. तो इनको एक ऑलराउंडर डालना चाहिए, मार्कस स्टोनीस या कैमरून ग्रीन, इनमें से एक को होना चाहिए. वो इसलिए होना चाहिए कि वन ऑफ द बैटर्स. जी, वन ऑफ द बैटर्स. मेरे ख्याल में मानस की जगह जो है ना वो लाना चाहिए वो जो स्टीव स्मिथ है, मैं विल स्मिथ कहने लगा था. स्टीव स्मिथ जो है उनको जरूर खिलाना चाहिए, नो डाउट, बिकॉज वो फाइनल्स खेले हुए हैं. हाँ, एक्सपीरियंस है और बड़ा मैच है. फेयरलेस खेलना पड़ेगा. अगर इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को फेयरलेस खेलना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया आर quite famous for fearless cricket, but this is World Cup final. अभी तक World Cup final में सिर्फ एक दफा 300 हुआ है, only once. वो भी ऑस्ट्रेलिया ने किया 2003 में. दूसरा ये है वसीम भाई कि इनके पास वो हैं, इनके पास कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले वो 2 ही बंदे हैं. ठीक है, जो बाकी है ना उनको फेयरलेस खेलना ही पड़ेगा. एक बंदे की फेयरलेस इनिंग्स लगी हुई, क्योंकि उनमें से जब एक चलता है वो 150 के ऊपर कर देता है. ऐसे ही है. और ये अगर होगा तो आप इंडिया से जीत सकते हैं, वरना जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, yeah, they're unstoppable. There's no question. Look, Misbah and Wasim, I bring this conversation to you. इन्होंने कहा कि वो इनको स्टोइनिस से कोई बॉलर जो है उसको वो करना चाहिए. Is it because ये पिछले सेमीफाइनल, अभी ये जो सेमीफाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जैम्पा के पीछे पड़ गए थे. जैम्पा पे अटैक हो गया था अचानक, 8-8 रन के उनके ओवर लग गए थे, उनको बाउंड्रियां लग गई थी, छक्के वक्के पड़ गए थे, तो उनको दे हैड टू गो फॉर देयर अदर बॉलर्स, यू नो, बैकअप बॉलर्स के अंदर वो करना पड़ा. सो मे बी शोएब्स आइडिया इज अ गुड आइडिया. मे बी ऑस्ट्रेलिया शुड से ओके, यू नो, वी मे बी गो विद अनदर बॉलर इन देयर जस्ट इन केस, बिकॉज इंडिया प्लेज स्पिन रियली वेल एंड दे हैव बेस्ट एवरेज अगेंस्ट स्पिन इन दिस वर्ल्ड कप. अगेन 113 की एवरेज है उनकी 10 मैचेस में. रन्स हैं 1138, रन रेट 5.86 के साथ. उनके पास ऑप्शन तो है, मिच मार्श की ऑप्शन है, फिर उनके पास मैक्सवेल है, स्पिन में वो डिवाइड करते हैं. इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल. आई विल प्ले माय प्रॉपर बैटर. Am I right? That's what I would do. मिसिंग है ना, जो पावर रेटिंग का लिंक मिसिंग है, एटलीस्ट स्टोइनिस के आने से वो तो हो सकता है. ये बट अगर ऊपर से 2-3 आउट हो गए, इनिंग्स बनानी हो, मेरा नहीं ख्याल स्टोइनिस कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम वही है, बनाने वाला काम नहीं है. जो बैटर है ना, बैटर उसको एटलीस्ट पिक तो हो बॉलर. जब वो पिक ही नहीं हो रहा और आउट ऑफ फॉर्म भी है तो वो समझ नहीं आती है कि आप फिर उसके साथ. स्टोइनिस को भी पिक नहीं होगा, वो अगर वो भी आएगा उसकी जगह लाबुशैन स्ट्रांग है, वो क्लियर कर सकता है बाउंड्री को. मिस हिट भी उसकी क्लियर कर सकती है probably. That's what we're वो तो डोले चोले दे आने. All right, with that we're going to take a break here in the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports in the Air by Zap app, and it's our final day here in the Pavilion as we're all set for the final, Australia versus India. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से, saying maybe Labuschagne might be out, keep him out and bring in somebody else, or go with a better batter. Different opinions here. Let's talk about the Australian bowling. Now, initially जब start हुआ था, Zampa, Wasim was not in form, not doing really well. We criticized कि क्या squad pick किया, spinner ही नहीं है, इंडिया में World Cup हो रहा है, remember. And then he made a big comeback, except that he did get a little, taken for a little in the semi-final. Yeah. However, the Australian fast bowlers have really picked up steam. It's as if they have now gained momentum. Especially Josh Hazelwood. I mean, we talk about him quite a bit. He's kind of an unsung hero जो बड़ा कम उस पर बात करते हैं. But वो main weapon है. We go towards Stark, Mitchell Stark, and we go towards Pat Cummins, the captain. But this guy Hazelwood, it's just the length he bowled early on with the new ball.
कोई भी बैटर हो, कितनी अच्छी टेक्निक हो, उसको तंग तो करता है, बैक ऑफ लेंथ कभी अंदर कभी बाहर, एंड इज़ अ टॉल गाय एंड जनरेट्स एक्स्ट्रा बाउंसर। इसका रैकेट कोहली के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है इन ओडीआईज़ में। 51 रन बनाए कोहली ने, 5 दफ़ा इससे आउट हुए हैं, सिर्फ 10 की एवरेज है। सो एज अ बॉलर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है आपको कि इस बैटर को मैंने आउट किया हुआ, मेरे से स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं इसको नॉकआउट मैच में, वर्ल्ड कप फाइनल में मैं प्रेशर इस पे डाल सकता हूँ। दैट्स गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। वसीम भाई एक रीज़न भी है क्योंकि विराट कोहली नॉर्मली लाइक्स टू ड्राइव, और ये वो आपको ड्राइव वाले बॉल नहीं देता, वो बड़ी एक गुड लेंथ पे बॉल करते हैं और वहाँ से एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, स्पेशली ऑफ द सीम मूवमेंट होती है। तो जो भी प्लेयर थ्रू द लाइन ड्राइव खेलने वाला होगा तो आसानी नहीं, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, हार्ड लेंथ से जो बैक फुट पे अच्छे शॉट खेलेगा या इस किस्म की शॉट है तो वो कहीं ना कहीं फिर कैश करता है ऐसे बॉलर को, बट इज़ अ डिफ़िकल्ट बॉलर। हम भी जब खेले हैं वो सामने पड़ता है बॉल आपको ऐसी जगह पे जहाँ आप ना पूरा फॉरवर्ड जा सकते हैं ना बैक फुट पे, और कुछ ना कुछ होता ज़रूर है ऑफ द सीम, हल्का सा गेंद या अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, तो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी difficult. He's kind of quality player maybe similar to Shami the way he hits the deck, or seam, not similar as a bowler, but जब उनका बॉल आके लगता है, सीम पे लगता है दोनों का, कभी अंदर कभी बाहर। फिर एक्स्ट्रा क्योंकि हाइट की वजह से थोड़ा बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। शामी को बाउंस उतना नहीं मिलता, इसीलिए वो ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है इन विकेट्स पे, क्योंकि वो फिर लेग बिफोर या बोल्ड ही होना, आपको खेलना पड़ना बॉल। और लेफ्ट हैंड को कितना ज़बरदस्त इंप्रूव किया शामी ने, व्हेन ही गोज अराउंड द विकेट, एवरी टाइम ही गोज अराउंड द विकेट। रिमेंबर उसने जो व्हाट्स हिज नेम बेन स्टोक्स को आउट किया था अराउंड द विकेट, ऐसे 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 और एक ऐसे, और वही लेंथ से जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप, आइदर अंदर आइदर बाहर। 8 विकेटें लेफ्ट हैंडर्स की लिए उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर, एंड डज दैट मीन वसीम averaging 4, averaging 4 that we might see him earlier on because you've got Warner and Travis Head both lefties, maybe आप पिछले मैच में भी देखें ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सिराज फौरन उन्होंने भटा के शमी आया और दोनों लेफ्ट हैंडर्स को They'll probably start with the same bowling attack, Bumrah and Siraj. They've been bowling really well. And if nothing happens, then they'll bring back Shami. I think they'll go with the same plan. इसके पीछे पूरा प्लान है। हाँ, ये भी बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते, वो 100 ओवर्स का मैच खेलते हैं और वो कहते हैं कि हम रेडी हैं फॉर द 100 ओवर मलिक, उसके पीछे पूरा एक प्लान। अगर जनरली आप देखें सिराज इज बेसिकली स्विंग बॉलर, तो उसको ये मौका देते हैं नया बॉल के आके स्विंग करे, यही बेस्ट चांस है उसका विकेट लेने का। बुमराह भी उसी तरह है कि उसका सीम भी लगता है लेकिन वो स्विंग ज़्यादा है। अर्ली ऑन आप देखें पूरा बॉल ऐसे जाता हुआ नज़र आता है किस तरफ, एंड देन इफ इट्स नॉट हैपनिंग तो फिर शामी आ जाता है कि ठीक है ला के सीम मारो, ऑफ द सीम मूवमेंट मिले, उस पे विकेट्स ले, तो पूरी वो बेसिस जो है उन्होंने कवर की है। Well, bowlers would be very interested, like the batters, to see how the pitch is laid out today. They pain just pitch report कर ली, and here's the pitch report brought to you by Colgate. What says you, Wasim? Moisture, roughness, darkness. Soil का उड़ीसा का soil है black soil and it looks very dry to me. It looks too colored, it looks dry, but वो feel से पता लगता है, बस देखने से आपको देखें ये जो आपको दो कलर लग रहे हैं ना, brown और dark सा black सा, so that shows कि इसमें dryness ज़्यादा है बजाय के moisture के। उसमें moisture भी का है, हाँ? Batman का outfit लग रहा है, Batman का outfit लग रहा है। That's strange. That's your imagination is pretty wild there. But it's going to be tricky. It is very tricky. I just think डिसीजन आसान होगा बिकॉज उनको पता होगा कि उन्होंने इस पिच पे आइदर चेस करना है या बैटिंग पहले करनी है। किनको, इंडिया को या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया बहुत क्लैरिटी के साथ वो चेस करेगा इस पिच। और जैसे अभी नासिर हुसैन ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल्स में टीम्स टेंड टू बैट फर्स्ट, बट मे बी इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट ऑन टुडेज गेम। नॉट विद इंडिया, दे आर बिकॉज़ ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स delivering so they, consistently. If India win the toss, you think they'll bowl or they'll bowl for sure? They'll bowl first. On this pitch, they'll bowl first. Your gut feeling? I think कि जिस तरह पिछले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हुआ है, मुझे लगता है कि स्पिनर्स इवन रिवर्स स्विंग पुराना बॉल हमने देखा कि 30 ओवर के बाद बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो लगता तो यही है क्लियरली जो कि उनको फेवर होगी अगर वो पहले बॉलिंग करे। एक और भी मुश्किल होगी। और जो अभी तक वर्ल्ड कप के 4 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, उसमें से 3 मैचेस टीम जो जीती है वो चेजिंग जीती है। और एक और भी वजह है, ड्यू फैक्टर भी होगा। Wasim, here's my question, Skip.
it is a final, and what Nasir said, you know, the final, if you bat first and you put 260, 270, that puts a lot of pressure. And every score in this World Cup has been on this pitch is 251. Right, there you go. There you go. वैसे भी एक चीज़ और है, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया उस चीज़ ज़्यादा हो गया यार। हाँ, उस वक्त ड्यू फैक्टर बहुत लेट आ रहा था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी ना उस वक्त। अब थोड़ा सा जो है वेदर वो थोड़ा सा बेहतर हो गया और अब ड्यू जल्दी आएगी। But my question is, Moin, have you seen any game that has been adversely affected by dew so far? क्योंकि हम बार-बार ड्यू फैक्टर की बात तो करते रहे throughout the World Cup, but कोई ऐसी गेम आपने देखी आप कहेंगे यार बड़ा फर्क पड़ गया, ड्यू ने बेड़ा कर दिया इस टीम का। इफेक्ट जरूर हुआ है, बट अगर वो मैच आप को याद हो जो दिल्ली में मैच हुआ था, श्रीलंका साउथ अफ्रीका का जो पहला मैच था, और उसमें चेस करते हुए 300 प्लस बनाए थे श्रीलंका ने, वहाँ ड्यू बहुत ज़्यादा आया था, इफेक्ट और नज़र आ रहा था कि बॉल बल्ले पे आ रही है इजीली, इस वजह से। अदरवाइज किसी मैच में कोई ऑस्ट्रेलिया अभी जीता है आखिरी मैच अगेंस्ट इंग्लैंड यहाँ पे 286, तो फिर अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो यू वांट टू स्कोर समवेयर अराउंड 300 ताकि आप उसको अपने आप को एक चांस दे सकें। सेमीफाइनल पे उन्होंने हमें यही बोला था, बैट फर्स्ट, स्कोर 300, यू विन द मैच। वो गले पे आ गया थी 212 का स्कोर भी। देखें, ड्यू फैक्टर आपको तब हेल्प कर रही है, हम लोगों ने वर्ल्ड कप में भी देखा, इफ यू प्लेइंग अ मैच अराउंड अच्छे उस पे 280, 290, 270, लेकिन जैसे 350 पे जाता है मैच तो वो फिर ड्यू फैक्टर तब तक आपको जाना है वो हो जाता है। All right folks, we're going to take another break here. When we come back, there's more on the other side. Please stay with us. Welcome back to the Pavilion, and you are watching A Sports and Sports in the Airways app. This is the last day. It's a big final here at the ICC World Cup. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic gentlemen: Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Wasim, we've got some very interesting shots. Some images आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये बराह रास्त अहमदाबाद से इस वक्त ये images आ रही हैं हमारे पास। जरा नोट कीजिए। Shoaib, what do you reckon? What is that? What does that look like? ऐसे लग रहा है कि ब्लू कलर नहीं नजर आ रहा है। It's a sea of blue. It's a sea of blue. And why not? It's in their country. Their team is in the final. India is the favorite. And जितनी भी support, जितना भी लाभ उनको मिल रहा है, they deserve it, I suppose. Look at that. Look at that. इसीलिए फाइनल भी यहीं रखा गया ना वसीम भाई, कि बहुत सारे लोगों को accommodate किया जा सके। 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। I think 120,000 or 120,000, just over 120,000. But look at this, people are waiting in queues, beautiful pictures coming out for Ahmedabad for this 2023 World Cup final, and the deserving teams have qualified, man. Absolutely, that fantastic image. Now, Shahid Hashmi Saab is there, and he's spoken to some fans. Let's take a look. वसीम भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं यहाँ अहमदाबाद में रहने वाला हूँ। मैं उनका जस्ट बहुत सारी मैचेस देखता हूँ और मैं ये स्पोर्ट्स AR स्पोर्ट्स को फॉलो भी करता हूँ और उनको सपोर्ट भी करता हूँ, और हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हुए, मैं ऐसे दुआ करता हूँ। Believe me, A Sports का शो is the most fabulous show, most unbiased show. Congratulations to Wasim bhai, Shoaib bhai, Moin bhai, and Misbah bhai, and Shahid bhai also for doing a wonderful journalist reporting in India. तो ये मैसेज मेरे तरफ से पूरे इंडिया के बिहाफ से ए स्पोर्ट्स की टीम के तरफ से है। जो काम आप लोगों ने वर्ल्ड कप में किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द लेजेंड्स, वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, एंड नॉट टू फॉरगेट अ फैबुलस होस्ट इन फखर-ए-आलम। जिस तरह से आपने पॉजिटिविटी फैलाई है, जो एनालिसिस आप लोगों ने दी है, स्पॉट ऑन एनालिसिस, एंड दैट्स व्हाट वी क्रेव फॉर एज जनरल क्रिकेट फैंस एंड मीडिया पर्सन्स एज वेल। और आप लोगों के पूरे टीम को एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन सारी इंडिया की तरफ से, सारे क्रिकेटिंग मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स जो शाहिद भाई हमारे कंट्री में आए थे, बाकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे कंट्री में आए थे, होप दे एंजॉयड आवर हॉस्पिटैलिटी। शाहिद सर तो ऑफ कोर्स ही हैज़ डन some fabulous job. The interview with Saurav Ganguly is a blockbuster. The way he has given his thoughts on cricket, and of course Moin Khan sir को मैं भी कहूँगा कि hair dye कर लेना चाहिए. He would look more handsome in that way. But a fabulous job done in the studio, led by Fakhar-e-Alam, Wasim Akram, Shoaib Malik, Misbah ul Haq, and Moin Khan, and on the field by Shahid Hashmi sir. So congratulations and keep doing what you guys are doing. Thank you. Thank you so much, Shahid Hashmi से एक साहब। चीज तो पता लगी है, पाइन वाल काले करा लो। नहीं ऐसे एक्चुअली ये नहीं हो सकता भाई, हमारी पेविलियन की चांदी की लोमड़ी चांदी की रहनी चाहिए, ठीक है? वो बाल काले हो गए। वैसे भी टाइम नहीं है माशाल्लाह,
500 घी में और सर कढ़ाई टाइम नहीं है सर मेरा कढ़ाई ख्याल में। वसीम भाई पैसे क्यों ज्यादा काम ग्रेसफुल काम है पता Yeah, I'm just kidding. You look fine, man. You look You got to look your age, I suppose. I know जो मेरी उम्र के लोग काले बाल करते हैं उनको एक मैं एडवाइस जरूर दूंगा, थोड़े काट काले कर लो, काले स्या नहीं। आप किसको कह रहे हैं? आपके साथ जो बैठे हुए हैं मेरी उम्र के भाई। मेरी उम्र के भाई तो बराबर ही है ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट बराबर ही है। कलर की बात हो रही है ना। I'm talking about जो मेरी उम्र के हैं। 80 की उम्र दे चिट्टे बाल के ने दसो जरा एक भी नहीं। Shahid Off the Hashmi, topic, thank you very off the much. topic. Your coverage has been wonderful. We really appreciate आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया Shahid Hashmi, and thank you to all the fans in India and around the world. We keep receiving your messages and your comments, and we truly appreciate that. Coming back to the venue, pitch हमने देख ली है, venue देख ली है, venue में इतने सारे जो हैं वो you know the blue force. So remember after seeing this beautiful pictures from India and Ahmedabad, the sea of blue walking in, supporting their team. Pat Cummings said yesterday, I think in his press conference somewhere I heard or read that their job is to keep the stadium quiet tomorrow. Wow. That was last Strong night. words. I mean that meant कि उसका मतलब था कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अपने आप support कम हो जाएगी. They'll be a bit quiet. So that's the job. Australian team job, that's what their skipper said. They're extremely mentally very tough, the Aussies, aren't they? I think it's just not- They do not get fazed by these things कि No. 1 लाख बंदा बैठा हुआ दूसरी टीम No. का कि नहीं बैठा हुआ. नहीं, I think एक तो उनको अपने उस पे preparation पे confidence है. As an individual, they are very confident individual, and that matters. They make their own decisions. They don't get bowed down by any pressure, unnecessary pressure around them. And probably this pressure, Australian culture जो है, ये Australian team है cricket especially, they thrive. They come out positive. They look for these sort of situations. इसीलिए तो 5 दफा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, the most by any team. लास्ट मैच जो हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, Yeah. एट वन स्टेज ऐसा लग रहा था कि द गेम आइदर इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा. सो दे शोड द ड्रेसिंग रूम्स एंड द प्लेयर्स एंड द सपोर्टिंग स्टाफ. यू कुड टेल इजीली कि कौन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है और कौन जो है दे जस्ट सिटिंग के यार ठीक है यार, वी ऑलरेडी डेल्ट विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, ऑफ्टन इट्स ओके. तो वो ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम ऐसा था, एज वसीम भाई सेड. और ये है कि यही टीम जैसे इंडिया की टीम खेल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली टीम जो उनके अगेंस्ट इस टाइम पे compete कर सकती है. मोइन, पिछले 10 साल में चारों आईसीसी के फाइनल्स जिसमें इंडिया खेला है वो चारों हारा है. And I'll quickly take you through final T20 World Cup 2014 against श्रीलंका, फिर 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर 2021 की चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड देन अगेन द टेस्ट चैंपियनशिप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2023. डज दैट प्ले अप ऑन द माइंड्स ऑफ द कि यार हम अभी तो अनडिफीटेड आए हैं लेकिन हमारा इधर जो है मामला फाइनल में आके हम फंस जाते फाइनल हैं. का प्रेशर तो होता है, ये कोई कहे कि जी प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो होता है, बट हाउ यू टेक इट, ये बात होती है. इंडिया जिस तरह खेल रही है, जिस जोन के अंदर खेल रहे हैं तमाम प्लेयर्स, आई थिंक दे आर वेरी पॉजिटिव, एवरी बेस इज कवर्ड. बट अभी जो पिच हमने देखी थी, इस पिच को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिनर को और डालना चाहिए इंडिया को यहाँ पे, बिकॉज के ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल किया है, पहले भी स्ट्रगल किया है. पहले मैच में हमने देखा था दे गॉट आउट ऑन 1 उससे टीम का कॉम्बिनेशन खराब नहीं हो जाएगा? दो फास्ट बॉलर्स अगर डालेंगे तो आप एक फास्ट किसकी बॉलर जगह That's what I'm saying. डाल सकते हैं. किसको बिठाएंगे? सराज को बिठाएंगे, या शामी को को बिठाएंगे. मुझे नहीं लगता उन्होंने 7 मैचेस में जो लगता है नहीं एक है भी चीज अगर नहीं जो की है. पिच नजर आ रही है. That's Moin's opinion. Yeah. Moin is saying Yeah, that's कि जो fine. पिच नजर आ रही है maybe they can reduce one seamer and take in a spinner, but हमें पता है most likely your opinion is Yeah. respected here, Moin, completely. of course. मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि वो लगता नहीं है कि उनका चेंज करने का कुछ मूड है आज. नॉर्मली तो यही होता है कि जो आपकी टीम चली आ रही है उसको आप कैरी ऑन करते हैं. आपने 6 मैचेस जीते में, मे बी दिस इज गोइंग टू बी द 7th मैच फॉर देम. बट अगर डिमांड है वहाँ पे, एक रिक्वायरमेंट आ रही है, नज़र आ रही है, अगर जो हमने पिच देखी है टीवी के ऊपर, ऐसी लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है ग्रास जो है, वो एक फर्म नज़र नहीं आ रही ऊपर ग्रास की लेयर जो है, तो उसमें जिस वक्त ड्यू आएगी उस वक्त भी मुझे लगता है कि गेन टर्न होगा, बिकॉज वो मॉइस्चर जब सैंड के अंदर मिलता है तो वो थोड़ी सी कहना चाहिए कि वो स्टिकी हो जाती है और ग्रिप करता है बॉल. तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिनर और डालना चाहिए टीम के अंदर, वेदर यू आर बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड.
इट विल हेल्प इंडियंस। आई थिंक वो हार्दिक पांड्या की इंजरी की वजह से थोड़ा सा ये जो लग्जरी थी इंडिया के पास वो अब वो नहीं कर सकते, अदरवाइज दे कुड हैव डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट कि अच्छा ठीक है, स्पेशली दो लेफ्ट हैंडर जो ऊपर हैं उनके अगेंस्ट अश्विन बहुत ही एक अफेक्टिव बॉलर होते, बट वो उस बैलेंस जो है उसको ठीक रखने के लिए इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने एक पेस, क्योंकि यहाँ पे अगर पहली बॉलिंग आ जाती है तो रिवर्स स्विंग इज़ अनदर फैक्टर, जो हमने देखा है पाकिस्तान के मैच में कि आफ्टर 25-30 ओवर्स यू नीड फास्ट बॉलर्स एज वेल, क्योंकि बॉल अच्छा खासा जो है ना उस मैच में रिवर्स स्विंग हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस एस्पेक्ट को देखते हुए सोचेंगे कि एक स्पिनर हम बढ़ाएं और फास्ट रिवर्स स्विंग जो है ना, क्विक पॉइंट, रिवर्स स्विंग पे जो कन्वेंशनल क्रिकेट जो स्ट्राइक रोटेशन वाले बैटर्स होते हैं उनको वो फिर भी डील कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड हिटर्स होते हैं, पावर हिटर्स होते हैं, रिवर्स स्विंग के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो कन्वेंशनल खेलने वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। Yep, and with that we're going to take another break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द एयरवाइज ऐप and it's the day of reckoning. It is the day when a new champion will be decided. India and Australia all set to go head to head in just under an hour. Well, just over an hour rather. My apologies for that. Let's talk about the batting on the Indian side. हमने उसके बारे में पहले भी बात की, but कितनी बात कर रहे हैं नहीं, उनकी बस batting और पे क्या भाई, बात क्या करेंगे जान आप? लेगा चलें क्या? और दसों की गल करिए एक मिनट के लिए। You tell me what else should we talk about? आज का मौसम, मेन्यू, रात का मेन्यू, बहुत है इंपॉर्टेंट चीजें। I'm just kidding, please. हम क्या करेंगे आज के बाद? आज के बाद हम क्या करेंगे? करो करी, उल्टी करना है, घर भी है ने साडे। Virat Kohli has played 8 ODI finals, never scored a half century in any of them. Scored 154 runs in these 8 innings at an average of 22. पिछले मैच में भी नहीं किया था तो 16 लग गए। पिछले मैच में हम यही कह रहे थे। सो टुडे हम फाइनल की बात करें, हम सेमीज की बात नहीं कर रहे। सेमीफाइनल में भी नहीं किया था उससे पहले। Right, and he did. Yeah, might be the day. Yeah, you never know. We've got Mitchell Stark with us. Let's listen in. All right, there you have it. You wanted to ask a few questions. Yeah, I wanted to ask my panelist a question. World Cup final is the ultimate for any cricketer, any young guy who wants to represent their country. जब वो मुल्क से खेलता है तो फिर उसका ख्वाहिश होता है मैं वर्ल्ड कप खेल लूँ। जब वो वर्ल्ड कप खेलता है, जब उसकी टीम फाइनल में पहुँचती है, तो that's right up there. So tell me, I'll start off with Moin. Tell me your experience night before the World Cup final. आपने तो 2 खेले हैं। 92 में बिल्कुल, एक तो ये था कि जब हमने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच खेला था वसीम भाई, पूरी टीम को एक यकीन सा हो गया था कि अब हमें पर्थ में जो था बिकॉज के पर्थ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना इन देयर होम कंडीशन और उनको वहाँ पे हराना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था टीम के अंदर। नेचुरली वो लीडरशिप भी थी इमरान भाई की, जिसकी वजह से ये हमारे फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसके बावजूद हम जब सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे थे तो हम वेट कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख रहे थे बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया जीते और पहुँचे। तो एक फीलिंग थी कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता। मैच से पहले भी फाइनल से कि हरा कोई नहीं सकता, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिला हुआ था। याद है कि रात को क्या किया था आपने? आपका रूममेट कौन था? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? या मुश्ताक वाज माय रूममेट। हाँ जी, और हम बस बातें कर रहे थे। सॉरी, क्या बातें कर रहे थे? वो आपको बताऊं? आप बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इस तरह बोले ना, आप वाली बातें कर रहे थे। फिर तो वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीत सकते। सो सॉरी, आई वाज विद इंजी, आई रिमेंबर। आर यू श्योर? जी इंजी। दोबारा चेक कर ले जरा, दोबारा याद कर ले। काफी टाइम हो गया। इंजी था। सो व्हाट यू गाइस डिड नाइट बिफोर? सेमीफाइनल में तो बताया था हमने, वो नींद की गोलियां खाई थी और इंजी की तबीयत खराब हो गई थी, बट फाइनल में कोई ऐसा रेस्ट नहीं लिया था। वी स्लेप्ट लेट क्योंकि मैच डे नाइट मैच था। आराम से सोए थे, नींद पूरी हुई थी, बट वी वर थिंकिंग कि मैच जीतना है और यही बातें हो रही थी मैच के बारे में कि क्या करना है जाके, यू नो। Who was your roommate? I think mine was Ijaz. Think? Are you sure? No, Ijaz भाई एक दूसरे के बगैर। What did you guys talk about that? We hardly spoke to each other. We probably ये प्लान कर रहे थे कि वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद क्या करना है। Yeah, we did, but unfortunately the game finished at 12. Celebrations वगैरह खत्म हुई, 2-2:30 बजे होटल पहुंचे तो पूरा मेलबर्न बंद सी। लेकिन मैं 99 वाले फाइनल की जरूर बात बताऊंगा। 99 वाला फाइनल जो हमने खेला था, मुझे याद है कि रात 1-2 बजे तक लोगों के वहाँ पे आ रहे थे ग्राउंड, हम रॉयल गार्डन में ठहरे हुए थे
और कॉन्स्टेंटली फ़ोन बज रहा है या दरवाज़ा नॉक हो, तो उस वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी होटल्स के अंदर, और एक ही डिमांड थी, कल के मैच का टिकट चाहिए। वो जो प्रेशर था ना, वो अमेजिंग होता है वो। You know, Mitchell Stark just said, dodging the 10,000 people in the lobby of the hotel. Yeah, I wrote that. Yeah, that can happen in India, Pakistan. The love of the game is so much. They just want to get a glimpse of the heroes, either the Australian Indians or Pakistanis. So that's a good thing. मुझे याद है 87 का वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान में मेरा पहला वर्ल्ड कप था. We used to stay at कराची में जो होटल है अब जहाँ आप लोग ठहरे हुए हैं. Yeah. So we used to come down in the lobby and there used to be kids, families, like I'm talking about hundreds and hundreds. Yes. आप पिंडी पीसी में ठहरो, वहाँ पे भी ये था, आप लाहौर में ठहरो, वहाँ पे भी. It was incredible feeling. And I think Indian team is going through the same thing. Yeah, दो चीज़ें थी, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और 2009 वर्ल्ड T20. दोनों में, एक में जो 2007 वाला वर्ल्ड T20 था साउथ अफ्रीका में, हम लोग साथ में ही होते थे मोस्टली सारे, और जो 9 वाला था जो जीते थे उसमें सारे तितर बितर थे, एक दूसरे को नहीं मिलते थे. इंग्लैंड में you get distracted, you have so many friends, so many people, and everybody in June, July is in England. लेकिन जो 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी हम लोग सारे जो थे वो साथ थे, तो जीते दोनों. वर्ल्ड T20 भी जीते 2009 वाला इंग्लैंड में, जहाँ पे सारे तितर बितर है. It worked. So I guess ये एक ऐसा टाइम होता है कि जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, and then मतलब great memories. Yeah. And with that, we're going to take another break, and when we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. We're getting very close to the action. It's the finals at the 2023 World Cup. Now, Misbah, how important are strike rates for any batting side? Because averages की तो हम बात करते हैं players की हुए, but strike rates in a tournament like this, in a final like this, how valuable will strike rates be? देखिए, दोनों टीमें, अगर दोनों ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं, तो स्पेशली टॉप ऑर्डर के जो इनके बैट्समैन हैं, जिनके फर्स्ट पावर प्ले की भी अगर बात करते हैं, तो टॉप स्ट्राइक रेट्स हैं इन दोनों टीमों के, तभी ये फाइनल खेल रहे हैं. सो इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अर्ली ऑन अगर आप अंडर प्रेशर कर देते हैं दूसरी टीम को, एंड देन यू कंटिन्यू टू डोमिनेट थ्रू आउट द इनिंग, वो जो बीच में आके थोड़ा सा मुश्किल होता है कहीं भी पुराने बॉल के साथ, उसको फिर एटलीस्ट जो है टाइम मिलता है मिडिल के बैट्समैनों को सेटल डाउन होने का और फिर रीबिल्ड करने का. उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे बैट्समैन हो जो एक अच्छी ऊपर से आके बेस सेट करें. रोहित शर्मा थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा कि अर्ली वो पहले 4 ओवरों में ही ऐसी आके बेस सेट करते हैं कि फिर इंडिया जो मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो, 300 प्लस पे चले जाते हैं. इसी तरह डेविड वार्नर, और हमने देखा कि ट्रेविस हेड जब से आए हैं टीम में वापस, उन्होंने आते ही ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. पिछले मैच में भी देखें, मुश्किल पिच थी, 212 रन्स थे, मुश्किल पिच थी, लेकिन वार्नर और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से स्टार्ट किया ऊपर से, देयर बेसिकली स्ट्राइक रेट्स, उन्होंने हेल्प किया ऑस्ट्रेलिया को वो चेस करने में. तो आई थिंक दैट्स द की. जिस टीम के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो हाई स्ट्राइक रेट्स पे खेल सकते हैं, वो डोमिनेट कर रही हैं. इट्स अ क्लियर एविडेंस इन थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप. 2 टीमें टॉप पे आई हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, जिनके पहले हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप्स थी इस वर्ल्ड कप में. सो ओपनिंग पार्टनरशिप मैटर्स. आई सपोज ऑस्ट्रेलिया के 605 रन्स और इंडिया के 603 रन्स. कल भी हमने बात, डिफरेंस नहीं है, 2 रन्स का डिफरेंस है ऑल द गेम्स. कल भी हमने बात की, लॉन्गर फॉर्मेट खेलने वाले जो दोनों टीमों में प्लेयर्स हैं ना, उसकी वजह से भी ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, क्योंकि वेरी ट्रू, लंबी क्रिकेट के अंदर आपको मौके मिलते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. कभी ODI की तरह खेल रहे हो, कभी T20 की तरह खेल रहे हो. आई थिंक दैट्स आल्सो काउंट्स. Yep. Glenn Maxwell 150.18 strike rate. Travis Head 139.13. Mitchell Marsh 107.87. And the lowest in these 4, David Warner 107.53. And we have David Warner with us. Let's listen in. वार्नर से ज्यादा नर्वस तो मुझे कमेंटेटर लग रहे थे. वो काफी टेंशन में आए हुए थे और बार-बार पूछ रहे थे. उसने कहा मैं तो कल वार्नर की ग्रेटनेस है कि मैं कल गोल्फ खेल के मैं तो कोई नर्वस नहीं. आई थिंक वो डेविड को मे भी इतना नॉइजी है, उसको शायद टॉक बैक की आवाज नहीं थी आ रही, सो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हैपन. बट या व्हाट अ पॉकेट रॉकेट दिस बॉय इज डेविड वार्नर. आई मीन they spoke about the fielding in the previous game. In first 10-15 overs, they saved about 20 runs. And he said it's just that's the way we do our fielding.
ये सब जब हम प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं गेंदों की करते हैं कि हमने ये गेंदें रोकनी है, सीधी तो रोक ही लेंगे, जी, जी, जी। ये डाइव मारने की जो प्रैक्टिस या रोकनी है उससे, एंड बॉलर्स एंड फील्डर्स की एक हार्मनी होती है। ही सेड बॉलर्स स्टार्ट ऑफ द प्रेशर एंड वी फॉलो द लीड। बिल्कुल हमारी तरह। बिल्कुल मिसबाह। वैसे भी सेमीफाइनल और फाइनल्स ये ऐसे मैचेस होते हैं, इसमें स्किल इतना नहीं आपको जो है ना वो चाहिए होती जितना आपको प्रेशर को डील करना आना चाहिए इसमें। एंड दीज काइंड ऑफ स्टेजेस इज लाइक biggest opportunities to become a superstar and do something exceptional for your country and be remembered rest of your life. ये है आज फाइनल। This is definitely. हम लोग बात कर रहे थे, मोइन ने कहा कि maybe India should consider putting in another spinner. And रविचंद्र अश्विन की बात होती रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, शायद ये मैच खेलेंगे, शायद ये मैच खेलेंगे। बट इंटरेस्टिंग फुटेज वी हैव पिक्ड अप फ्रॉम अहमदाबाद। हडल हो रही है जो वार्म अप में ये टीम ऑस्ट्रेलिया की। लुक हु इज टॉकिंग देयर। It is Ashwin who's got the ball in his hand. It is him who is briefing the boys. Does this indicate that he might be coming into the team? This indicates is that कि जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता आप है। बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं। नहीं एक्चुअली वसीम, 5 मिनट वेट का है ना, पता चल जाएगा। 5 नहीं, मिनट पहले तो सीखे होंगे। आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि वहां से जो आईसीसी की हमारे पास फीड आ रही है उसमें कमेंटेटर्स ने कहा है कि अभी तक नहीं कंफर्म किया कैप इंडिया ने कि वेदर सिराज इज प्लेइंग और अश्विन। इंडियन टीम को सब पता है कि क्या प्लेइंग 11 खेल वो रही बता है, नहीं रहे। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। व्हाई वुड दे टेल द कमेंटेटर्स और अस गाइस? Yeah, that's सो true. दे नो व्हाट इज डूइंग। मे बी अश्विन बात कर रहा है लाइक शोएब सेड कि जो बाहर के उनके एक्स्ट्रा लड़के बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी टीम का हिस्सा हैं। इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ giving प्लेइंग in the 11 feed एंड ड्रॉपिंग वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स एंड प्लेइंग एक्स्ट्रा स्पिनर ऑन दिस पिच माइट बी हेल्पफुल, बट आपका टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए। थोड़ा फनी आंसर भी है। वैसे ही अगर आपको फाइनल खिला रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस नजर भी नहीं आता फेस पे। हाउ यू टॉकिंग। बट ये बड़ी दूर की कोड़ी जो बिल्कुल पतली चिकन लेकर आए हैं कि ना से बंदा कॉन्फिडेंस नजर नहीं Experienced आता। cricketer, he has played 100+ No, of test course, matches. I'm not And, taking he knows what he's a he's team done man. for his country. We've got one of the main striking force of Team India, Bumrah, with us. Let's listen in. But so far, all the interviews that we've seen out of Ahmedabad, all the boys look very confident, both on the Australian side Happy, and confident, Indian side as well. controlled. He said we are sticking to our strength. Yeah. जो हम पिछले महीने से कर रहे हैं, and we stay in the present. We don't think ifs and buts. We are supporting each other, and most importantly, we are enjoying each other's company like we are doing here. Right, with that, we're going to take a break here now, and when we come back, we're closer to the toss, so stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app, and it's the final day, India versus Australia. The big day, and we'll find out who is the champion at the end of the day. The best thing that has happened to us here in the Pavilion today is that we got new jackets. Wow. Finally. बजट रिलीज हो गया। पाइजन प्रेसिडेंट ए स्पोर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you guys. Looking good. Thank you. देर आए दुरुस्त है, बिल्कुल आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। एटलीस्ट एक जैकेट तो घर ले जा सकते हो। ये भी तुम्हारी गलत फहमी है, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे ले जाने से पहले बाहर। एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं आए वाईफाई की, वो बैक रूम में बड़ा प्रॉब्लम रहा है थ्रू आउट द ट्रांसमिशन। अच्छा आज Don't want me to say anything on television to you, Che. Moin. सदर ए स्पोर्ट्स से पूछे आप जरा, द प्रेसिडेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स मिस्टर वसीम अकरम। I have so much to say right now, but I'm keeping my gob. on the way back to your place. Yep. मोइन, इन द ब्रेक आप अश्विन के हवाले से पॉइंट बता रहे थे, जरा उसके ऊपर तफसीली तौर पे गुफ्तगू कर लें। तफसील आप पहले टाइम देख लें, आपका टॉस आने वाला है, मुझे पता है आप बीच में मारना है कट। 1 मिनट है टॉस में, आप बता सकते हैं। अरे अश्विन को इस वजह से एक तो पिच देखी है, दूसरी जो अपोजिशन उनके पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, यू नो, तो नए बॉल से ही कैन बी वेरी डेंजरस टू बोथ ओपनर्स। यस, या बिल्कुल। और यही लॉजिक देखते हुए पिच जिस तरह देखी है मैंने, वेदर यू आर बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड, वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी इंडिया के लिए। वो ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं 2 ओपनर्स पे। व्हेन दे कम आउट सक्सेसफुल, देन
they're giving them the Right. right platform for rest of the batters to come and play their games. ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर उन्होंने ही रन किए उन्होंने भाई, ही अगर runs सेंचुरीज भी देखे तो उन्होंने ही किए हुए। नीचे जो मिडिल ऑर्डर है उसमें इतनी स्ट्रेंथ। Good matchup. जी मिसबा, मुझे कह रहे थे अब चेक कर लो आपको क्या कह रहे थे? आपको क्या कहा? कि मैं क्या कह कहा? रहा हूँ कि अश्विन ये वो उधर चेक कर लो। नहीं वो तो ये ठीक है, वो point तो है। शुरू से ही हाँ, कह रहे हैं। वो तो शुरू से कह रहे मिसबा, हैं। अब मैं क्या ही बस बता ही देता हूँ। मेरे साथ बैठा हर चीज़ के वो नहीं आ सकता, कम्बिनेशन खराब हो जाएगा, पांड्या अनफिट हुआ है, Swing होता है सिराज स्विंग का होता है ball। सिराज का, ये बात हो गई। मिसबा अपने पॉइंट पे हो गया। आपने लास्ट ब्रेक लिया तो मैंने कहना कहानी अश्विन वैसे बड़ा परफॉर्म करेगा। We're going to take you straight to Ahmedabad. Both the captains are walking out to flip the coin. Brought to you by Samsung Flip. Well, the news out of Modi Stadium in Ahmedabad is that Australia won the toss and elected to bowl. Wasim, what about all those geniuses? आज तो कॉइन जो है वो कालीन पे गिर गया और रोहित शर्मा टॉस भी हार गए। आई सपोज ठंड पै गई होनी। मैं वही कह रहा वो हूँ ना। आज ये कह देंगे कि कॉइन जब टॉस उस पे गिरा कॉइन का, तो वो देखा ना इंडिया में टॉस हार गया। I know. I mean, Can't make them happy, man. You can't make them happy, but I mean, I hope कि जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर वो सोशल मीडिया पे हमें टैग कर करके देखें सर वो यूं हो रहा है, देखें ना कॉइन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। फाइनल है, फाइनल में टॉस हार गया इंडिया। I mean, you have to be more responsible and reasonable when you come up with these strange conspiracy theories. It's the international game of cricket. Is it a good toss to lose? Let me ask you that, Wasim. I think उनके कप्तान ने कहा कि he would have batted anyway, so it was a good toss to lose for them. They हो सकता है कि वो कप्तान ने अपने ड्रेसिंग रूम में मैसेज भेजा होगा कि डोंट थिंक अबाउट द टॉस, और ये बोला होगा कि हम लोग पहले बैटिंग yeah, toss because it's not in your control. He said probably plan होगा टॉस जीते तो हम बैटिंग ही करेंगे. That's with the strength. He said कि final knockout match, 140,000 people watching, runs on the board matters. All right, Misbah, we've got the Indian playing 11. Take us through, please. They're playing with the same team, so Rohit, Gill, Kohli, Shreyas, Rahul, Surya Kumar. I think expectations होंगे इनसे भी. Jadeja, I think on this pitch बहुत important होंगे, and then Bumrah, Kuldeep, Shami and Siraj. Shami also keeping in mind कि left-handers top पे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जिस किस्म की वो फॉर्म में, I think it will be the key. Yeah. All right. And Australia team coming up next on our screens, Wasim. Yeah, it's the same side. Both the openers are in very good nick. Travis Head and David Warner. Mitch Marsh got 177. Big player, big unit. Smith and Labuschagne. Lot depends on them when they're going to come out to chase. Maxwell, English at number 6. And then of course 7. And then the 4 bowlers. 3 fast bowlers: Skipper, Stark and Hazelwood. And then of course Zampa. So yeah, looks a good side, consistent side, and the same side. All right, there you have it. The two playing 11s. The news is Australia won the toss, elected to bowl. And with that, we are going to take a break here in the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 Sports and the Airwise Zap app. And the news out of Ahmedabad is that Australia have won the toss and have elected to bowl first. And with that, it's time for your expert predictions, brought to you by Express Power. All right, expert predictions. Let's start off. Misbah Haq. अच्छा जी, बड़ा मुश्किल सवाल. सब तो पहले मुश्किल हो तो मेरे वाला आ जाया करो. मुश्किल क्या चलें, इंडिया. टेक्निकल कमेटी इंडिया है जी, इंडिया. India. All right. Misbah says India. Wasim? Look, इंडिया मैंने कहा है पहले भी 60% फेवरेट है, 40% मैं दूंगा ऑस्ट्रेलिया को, मगर मैं घर भी जाना है. The ससुराल दे मुताबिक ऑस्ट्रेलिया. All right. भाई नहीं जा रहे हो तुसी. Exactly. Susral. 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 Okay. Moin? इंडिया. India. And Shoaib? I want the World Cup to stay in the subcontinent, but as an expert, I think Australia. Oh, wow. So we have 2 India and 2 Australia. मुझे कहते हैं ना, मुझे कहते हैं जो ज़्यादा मेरे पे बोलते हैं दोनों ने दोनों पासे बेसिकली चुने ने, अद्धा इधर अद्धा उधर. कोई तुमरी हाँ ना में मुझे फर्क नजर नहीं आवे. ओए क्या डायलॉग बोला है, दोबारा बोले जरा. कट करें मिसबा पे और अब बोले तुम क्या. तुमरी हाँ ना में कोई फर्क नजर नहीं आवे. लेकिन मसला पता है कि हम एक चीज में वो फर्क नहीं नजर आती. आप 100 बोले तो 100 में फर्क नहीं नजर आता. And those are your expert predictions.
And it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. Right, Janab, player to watch out for, Shoaib Malik. और ठीक है, टीम तो ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर में इंडिया से चूज करना। कर लो जनाब, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑफ कोर्स। आपको इजाजत है। जास्ते पाइन जी। केएल राहुल। KL Rahul, okay. मोइन? शुभमन गिल। शुभमन गिल। आज कार नहीं बनाया मोइन भाई ने। अच्छा। नीचे बनाया हुआ है। बनाया हुआ है? ये कर। ओहो, आज तो गाड़ी भी है। ओके। डेविड वार्नर। David Warner, all right. Misbah? शमी जडेजा। Jadeja and awesome. Those are your players to watch out for. All right, folks, with that, we are very, very close to the action. It's a big day. At the end of the day, we'll find out who wears the crown of being the champions of ODI cricket. And with that, Shoaib Malik, thank you very much. Really appreciate it. Moin Khan, thank you very much. Really appreciate it. Misbah ul Haq, thank you very much. Really appreciate it. And Wasim? Thank you. No thank you for you. You're still staying with me. We're going to have lunch. Okay, absolutely. All right. With that, folks, we're going to take you to Ahmedabad, and we will see you at the end of the day when the new world champion is unveiled. Stay safe. See you on the other side.